any doubts regarding that, you can ask me anytime. All right. So if you have any questions regarding last lectures, last chapters and all, and if you have any doubts regarding them, you can ask me anytime. Yes, anyone would like to ask any questions regarding last lectures? No, sir. No, sir. If you have any questions, you can ask me. Okay, sir. I believe all of you have the documents, audios, and recordings as well with you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good one. And the students who are remaining with the audios, books, recordings, and all the other things, they can text me on WhatsApp with their mail ID. So again, I can provide them all the data over there. Okay. Okay. By the way, without wasting time, we are going to go ahead. Let's the other comes later if there would be. So, as we have seen, according to our timetable, according to our schedule, you can see here today is Wednesday, and I'm going to start your tenses and sentences in English. As we've been making sentences for a long time in English, basic one. So today I'll be showing you here some great sentences and tenses in English. So the first one, the most mandatory in English, that's what? Simple present tense I'm going to share with you over here today. Now, simple present tense is the first tense of English and one of the most important tense. Why? One of the most important tense in English, one of the finest tense in English is what? Simple present tense in English. Now, when do we use simple present tense? Can you please tell me? Yes, when do we use simple present tense? Routine. Anyone? Routine. When we talk about day-to-day life. To talk about? When we talk about our current life, current situation, present time. Daily life. Okay. Okay. So ultimately, you mean that we are using simple present tense for actions in present. Very good. Next, what else? When do we use it? Yes, when do we use it? Next one, please. Let me tell you here. Now, simple present tense is the father of all tenses in English. All right? How, sir? I'm just telling you. Let me just complete it. Okay. So as you can see here, simple present tense is the father of all tenses in English. Remember, point number one. Simple present tense, we are using more than 80% in English. That's why. Please mute all of you. Mute yourself. Mute yourself. Mute yourself. कोई भी अपने आप को unmute नहीं करेगा, okay? Until and unless I tell you. Because today's topic is really very important topic, so nobody will miss it. And do not mute yourself until and unless I permit you. So point number one is there. Simple present tense is the father of all tenses in English. Why? Because we are using simple present tense more than 80% in English. We are using simple present tense more than 80% in English. Point number one. English के अंदर सबसे ज़्यादा जो tense use होता है, that's what simple present tense. That's why I call it simple present tense is the father of all tenses in English. Point number one. Whatever I'm speaking right now, it is also simple present tense. Whatever I'm teaching right now, it is also in simple present tense. Whatever we generally speak up in our daily life is what? Simple present tense. So if you're going to a company, if you're going to an interview, if you're going for an interview, if you're going to a party, whenever you're going anywhere, generally we speak there simple present tense. So simple present tense is the father of all tenses in English because we are using simple present tense more than 80% in English. Getting it? Noise, sir. Pardon? Noise, sir. Noise. Background noise, sir. Mr. Pawar, can you please mute yourself? Good. So simple present tense is the father of all tenses in English. Okay. Why? Because we are using simple present tense 80%. Andar.
किसी को भेज, यहाँ पे फोन करो। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? अब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहां पे होता है? ओके, ये बुक आप लोगों को मिला ही रहेगा टेंसेस का, इसके अंदर सब पूरा है, जो कि मैंने मेरे खुद का लिखा हुआ बुक है ये। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाउ वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर मल्टीपल पर्पसेस। ओके, पॉइंट नंबर 1, we are using, as we said, that we are using simple present tense when something is going on in the present, for the present situation, right? So that's called actions in present. Now simple present tense we are using for actions in present. Point number 1 हम यूज करते हैं for actions in present. Next one we can use जब भी, for example actions in present मतलब इन जो present में हो रहा है, होता है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं simple present tense. For example आप लोगों ने ड्रामा देखा रहेगा, पोएम देखा रहेगा, उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए. फॉर एग्जांपल द मैन कम्स इन, ही सिट्स ऑन द चेयर, ही स्टार्ट टीचिंग. सो ये क्या होता है, ड्रामे के अंदर आप लोगों ने देखा रहेगा कि वो अंदर आता है, चेयर पर बैठता है, पढ़ाना स्टार्ट करता है, फिर यहाँ से जाता है. ऑल दीज आर व्हाट? एक्शंस इन प्रेजेंट. सो वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस देयर फॉर एक्शंस इन प्रेजेंट. पॉइंट नंबर 1, we are using simple present tense for actions in present. Next, fact. Fact का मतलब क्या होता है? What do you mean by fact? Fact. Reality. Correct. Reality. हकीकत. Okay? हकीकत, सच्चाई. Fact, reality. So for facts also we are using simple present tense. For example, sun rises, sun sets. Yes or no? Sun rises, Yes, sir. sun sets. Fact है वो. ऐसा है कि भाई आज का सन जो वो शाइन ही नहीं करेगा. वो होता है कभी ऐसा? नो. No, sir. सो जनरली, सो दिस इज व्हाट फैक्ट. ट्रुथ प्रिवेल्स एट द एंड. सच की हमेशा लास्ट में जीत होती है. ये क्या है? फैक्ट है ये. आप कितना भी कुछ भी करो, बट सच की लास्ट में क्या होती है? जीत होती ही है. यस नो? सो दिस इज ऑल्सो द फैक्ट. नेक्स्ट वन, अनदर फैक्ट, और द मून लाइट्स. मून जो है वो अपनी लाइट मारता है. यस नो? ये भी एक फैक्ट है. करेक्ट? Yes, sir. नेक्स्ट वन, और क्या हो सकता है फैक्ट? अलाइव ह्यूमन ब्रीथ्स. जिंदा इंसान सांस लेता है, ये भी फैक्ट है. यस नो? Yes, sir. करेक्ट. और क्या हो सकता है फैक्ट? Heartbeats. हार्ट बीट्स. करेक्ट. अलाइव हार्ट बीट्स, इट इज ऑल्सो द फैक्ट. तो फैक्ट मतलब यानी हकीकत, उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट वन, ओपिनियन. ओपिनियन म्हणजे राय. Ideas. राय. राय, हमारी राय. हम लोग बोलते हैं ना, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक, मतलब मेरा सजेशन, मेरा ओपिनियन. तो ओपिनियन के लिए भी, राय के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जांपल, इन माय ओपिनियन रजा इज वेरी गुड बॉय. सो रजा इज गुड, रजा इज अ गुड बॉय. ओपिनियन है मेरा ये. यस नो? ओपिनियन है. इन माय ओपिनियन we should take classes online only as pandemic is going on. So opinion मतलब मेरा राय. So that's what we are going to use there, simple present tense. Next, belief. Belief मतलब यानी विश्वास, यकीन. विश्वास, यकीन. Belief के लिए भी हम लोग यूज करेंगे simple present tense. For example, I believe that pandemic will over this month completely. Believe है मेरा, ये होने वाला है. I believe in God. God के अंदर believe करता हूँ. So for beliefs also we are going to use their simple present tense. ये सब चीजें जो थी नॉर्मल थी. यस मैम? Universal truth. करेक्ट, बोल सकते हैं. बिलीफ है हमारा, यूनिवर्सल ट्रुथ. सेम केस, ये जो सब चीजें जो मैंने अभी आप लोग को बताया, एक्शंस इन प्रेजेंट, फैक्ट्स, ओपिनियंस, बिलीव्स, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज की जा सकती हैं. बट वी आर गोइंग टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस एस्पेशली फॉर routine. We are going to use simple present tense especially for Routine. routine. Simple present tense is the father of all tenses in English. Remember, जो बंदे को simple present tense नहीं आया, आगे के tenses नहीं आएंगे उसको. And simple present tense आपके teachers लोगों को भी आधे से ज्यादा नहीं आता है. Why? Because they are making sentences. आप लोगों में से कितने लोगों ने ऐसे सुना है, she don't want money. ये sentence कितने लोगों ने सुना रहेगा? She don't want this choice. She don't want this bike. सुना है कि नहीं? She don't want. Yes, sir. Yes, sir. सुना है? गलत है सेंटेंस. ये सेंटेंस गलत है. लोग बोलते हैं गलत है. बोलना क्या चाहिए था मिस सना? She don't want नहीं बोलना चाहिए. मिस आयशा क्या बोलना चाहिए? She
Raza, Miss Supriya, She doesn't. she correct, Doesn't. exactly right. She doesn't want. अरे don't नहीं आता है. She doesn't want. वहां पे don't नहीं आएगा. क्यों, क्या, कब, कैसे? चलते हैं आगे एपिसोड में हमारे, देखेंगे आगे ब्रेक के बाद. So रूटीन के अंदर हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. What do you mean by routine? Daily We are life. going to use correct daily life or repeated Daily actions are activities. called routine. कोई भी एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है अपन उसको रूटीन बोलेंगे. समझ में आ रहा है? जो भी एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है उसको अपन बोलेंगे रूटीन. पॉइंट नंबर 1. सो especially we are going to use their simple present tense for routine. हम लोग मेन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किसके लिए करते हैं? We are going to use it for रूटीन के लिए. Routine. समझा? Routine. So point number 1, we are going to use simple present tense for routine. All right? भूलना नहीं. बाकी भी चीजें हैं उसकी, but simple present tense especially हम लोग यूज करेंगे रूटीन के लिए. All right? Next one. अब actions in presents के लिए यूज होता है, facts के लिए होता है, next opinion के लिए होता है, Believe. next beliefs के लिए होता है, correct, etc. But especially we are going to use it for Routine. routine. भूलना नहीं. Point number 1. Next one. अब simple present tense we are going to use it for routine. उसके पीछे रूल है. उसके पीछे एक रूल है. How to make good sentences in English with simple present tense. So that rule is called verb agreement rule. वो रूल को हम लोग बोलेंगे verb agreement rule. मैंने आप लोगों को बोला था verbs याद करने के लिए. याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को खास होमवर्क दिया था that you'll have to practice at home, and if you want to speak English amazing, then you'll have to learn verbs at home frequently. And if you're learning verbs, your English will become awesome and you will be able to make amazing sentences there. Okay? So now there is a rule is called verb agreement rule. अब जो बंदे ने verbs याद नहीं किया ना, जिसने मेरी theory के हिसाब से नहीं किया, वो लटक जाएगा. उसको simple sentence आएंगे, अच्छे high level के sentence वो नहीं बना पाएगा बंदा, क्योंकि वो भी नहीं रहेगा ना उसके पास में. So there is a rule called verb agreement rule in English for simple present tense. To make sentences in simple present tense, there is a rule and that rule is called verb agreement rule. Okay? अब पूरा जो खेल है पूरा verb के ऊपर चलेगा. Verb मतलब यानी क्रिया, action, fail, काम. Okay? Verb का मतलब होता है action. So there is a verb agreement rule. Verb का मतलब होता है action, जिसको आप लोग बोलते हैं क्रिया, काम. Okay, action. For example, going, action is coming, action is speaking, winking, looking, watching, reading, writing, speaking, walking, going, running, sleeping. Getting it? ये सब क्या है? Action है. Verb agreement rule है. पूरा खेल अभी verb के ऊपर रहेगा. कैसे रहेगा? Before we go ahead, let's have a look here. That verb agreement rule over here for simple present tense. अब यहाँ पे कुछ rule है. वो rule क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए please. That rule is saying that nouns and pronouns we have two types. Okay, nouns and pronouns. अब English के अंदर दो चीजें हैं, nouns and pronouns, and both are the same. Nouns and pronouns both are the same. Noun and pronoun both are equivalent. Nouns and pronouns both are the same in English. Okay, noun और pronoun दोनों भी same है. Now what do you mean by noun first? Noun का मतलब क्या होता है? Name. Noun means Place. name. Person. Very good. Word. Name. Name of what? Noun means name. Name of what? Name of a person, Person. Place. place, Location. animal. Correct? Thing. Or Think. things. Very good. Idea. Or ideas. Correct? Etc. So इसको अपन बोलेंगे क्या? Noun. So noun means what? Noun means name. Name of what? Name of what? Name of a person, place, animal, things, ideas, etc. Okay, noun. So what is pronoun in English? I. He. Correct. Very good. Now we have I, 7 she, pronouns we. in English. English के अंदर अपने पास में 7 pronouns हैं. Nouns and pronouns both are the same. Okay, क्यों है कैसे बताता हूँ मैं आप लोगों को. So we have 7 pronouns in English. What are those? I. I मतलब मैं. Next he. He मतलब वो लड़का. Next she. She मतलब वो लड़की. Okay. Next one it. It मतलब when do we use it? We are going to use it for. यहाँ. We are going to use it for Artificial. Baby. Artificial thing. artificial things. Very good girl.
मिस सुप्रिया बोल रही है आर्टिफिशियल थिंग्स, ये अपने को इंडिया में पढ़ाया गया है, बट दैट इज व्हाट एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ध्यान देना है सबने। नाउ इट कहाँ पे यूज होता है? अपने यहाँ पे कितने लोगों ने सुना है दैट वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स? हमने सुना है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो कि बिल्कुल गलत और झूठ है। सॉरी टू से दिस। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज देयर इट फॉर एनिमल्स, थिंग्स, बेबीज, प्लेसेस एंड आइडियाज। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर? वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर एनिमल्स, थिंग्स, बेबीज, प्लेसेस एंड आइडियाज। बेबी जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग Absolutely Living. living है। Living. Animals living or non living? Living. Living. Absolutely living. Living. So जो अपने टीचर ने बोला था, आपली जी बाई बोलली होती शाळेत नॉन लिव्हिंग साठी, ती बाई घेमडी असेल, शेमडी असेल ती, सॉरी। वाय? कारण की त्या बाईला माहित नाहीये, सॉरी, वो मैडम को पता ही नहीं था, शी वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सॉरी। नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर एनिमल्स, थिंग्स, बेबीज, प्लेसेस एंड आइडियाज। क्यों भाई? क्योंकि इसका अपन जेंडर बता नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल सामने से आ रहा है, अभी अपने को मालूम नहीं कुत्ता है कि कुत्ती है, पहले जाके चेक करेंगे क्या उसको? नो, वी आर नॉट गोइंग टू चेक इट अल्टीमेटली। आर वी मैड? नो। सेम केस, दिस इज अ कप, सो एनिमल्स के लिए अपन यूज करेंगे इट्स। अब वो सामने वाला बकरा है कि बकरी है, अपने को मालूम है क्या? नो। वो बिल्ली है कि बिल्ला है, मालूम है क्या? नो। सो वी आर गोइंग टू यूज इट्स, वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट, थिंग्स। कप, कप को ही बोलेंगे कि शी बोलेंगे? नहीं, तो लड़की है, डिजाइन इसके ऊपर बोलेंगे? Not decided, sir. नो, अल्टीमेटली मेरा लैपटॉप है, लड़की है कि लड़का है? क्या चलता है लैपटॉप मेरा? वाओ, अरे चलता मतलब ही नहीं, लड़का है क्या चलती है मेरी लैपटॉप? Laptop की बोलेंगे बैटरी क्या? चली गई. हाँ, लैपटॉप की बैटरी चली गई। सो कैन वी डिसाइड दैट इज इट अ गर्ल और बॉय? No, sir. नो। Not decided. सो वी आर गोइंग No. टू, सो थिंग्स के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? इट। नेक्स्ट, बेबी, बेबी को भी हम लोग क्या यूज करेंगे? इट, क्योंकि अपने को मालूम नहीं है, अभी अपन चेक करते बैठे हैं क्या? नो। नेक्स्ट वन, सेम प्लेसेस, इंडिया लड़का है, श्रीलंका लड़की है, ऐसा होता है क्या? जनरली नो, No, sir. देयर इज नो जेंडर। सेम केस आइडिया, फॉर एग्जांपल लव लड़का होता है या लड़की होता है? नो। हेट लड़का होता है कि लड़की होता है? नहीं, लव बोले तो लड़का, हेट बोले तो लड़की, ऑनेस्टी बोले तो ये, ऐसा होता है क्या? No. No, ultimately no. So for ideas also we are going to use their it. Is that clear? Clear? Yes. Good Yes, one. sir. Next one. Now I, he, she, it. Next pronoun में और कौन आता है? You. You मतलब आप. Next we. We मतलब हम, अमी. Okay? आप और मैं, हम. Next they मतलब वो लोग, ते लोग, है क्या नहीं? So we have 7 pronouns in English, and nouns and pronouns both are the same. Both are the same. Same. Both are the same. Getting it? Noun and pronoun both are the same. दोनों भी सेम है। क्यों भाई? क्यों सेम है? बताता हूँ मैं आप लोगों को। सी, मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाला हूँ, जाना नहीं वरना आप लोग लटक जाएंगे। क्या हो जाएंगे जय? लटक जाएंगे. वेरी गुड, यहाँ पे ध्यान दो। सो नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आर द सेम। फॉर एग्जाम्पल आई, आई कौन होता है? पर्सन ऑब्वियसली। एंड पर्सन क्या होता है? नाउन। सो आई प्रोनाउन है, पर्सन कौन है? नाउन है। सो नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आर द Same. Same. वेरी गुड, क्या बात है, दिमाग है आप लोगों को यार। ही थोड़ा मैं थोड़ा आ रहा है सर आपसे. ऑब्वियसली, अरे नहीं। सो ही पर्सन, यस नो, क्या प्लेस को बोलेंगे ही? नहीं नो, No, sir. ही पर्सन है, एंड पर्सन इज व्हाट? नाउन। सो ही प्रोनाउन है, पर्सन नाउन है, नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आर द सेम। नेक्स्ट शी, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? पर्सन Person. करेक्ट, Person. पर्सन। नेक्स्ट इट, एनिमल करेक्ट, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, Idea. आइडियाज, Place. यस नो, Ideas. करेक्ट, ये कैटेगरी में जाएगा। सो इट इज ऑल्सो नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आर द सेम। नेक्स्ट यू, पर्सन Person. एब्सोल्युटली Person. पर्सन वाली कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट वन वी, पर्सन एब्सोल्युटली Person. पर्सन की कैटेगरी में। दे एनिमल Person. पर्सन में जाएगा और एनिमल में जाएगा, यस नो, बोथ आर करेक्ट। Yes, sir. सो नाउन्स एंड प्रोनाउंस बोथ आर द Same. करेक्ट। फॉर एग्जांपल रजा इज अ पर्सन, करेक्ट। सो पर्सन नाउन है,
and he is Raza. तो he कौन है? Raza. तो Raza भी person है. So he and person both are the same. So noun and pronoun both are the same. Any doubts? Same. No, sir. Very good. No, तो sir. अपना ये डाउट क्लियर हो गया कि नाउन क्या रहता है, pronoun क्या रहता है. Point number 1. Let's go ahead towards our rule of verb agreement rule here. अब यहाँ पे rule क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए. While making sentences with simple present tense, you'll have to remember that he, she, it, third person singular, verb plus s or es, where I, you, we, they, verb plus no s, no es. He, she, it, third person singular, verb plus s or es, I, you, we, they, plural, verb plus no s, no es. अब यहाँ पे बोल रहा है वो रूल बोल रहा है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि मैंने बहुत उसको जंबल करके रखा हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता है. Now he, while making sentences with he, she, it, singular pronouns के साथ में, ये singular pronouns है, इनके साथ में जब sentences अपन बनाएंगे, while making sentences with he, she, it, singular, verb के अंदर अपने को लगाना है verb plus s और es, okay? और while making sentences with I, you, we, they, plural pronoun, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ में जब सेंटेंसेस बनाएंगे हम लोग, सो वर्ब प्लस नो एस नो ईएस, नो एस नो ईएस, इतना ही रूल है. ये मेन ये मेन रूल है हमारा, बस बाकी रूल कुछ भी नहीं है, ये मेन रूल है. ध्यान देना है इतना, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज. ही शी, बताता हूँ, समझ गया मैं आपकी बात क्या बोल रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान दीजिए सिर्फ. ही, शी, इट, सिंगुलर प्रोनाउंस, वर्ब प्लस एस और ईएस. आई, यू, वी, दे, प्लूरल प्रोनाउंस, वर्ब प्लस नो एस नो ईएस. अब अपने पास में प्रोनाउंस कितने हैं? हाउ मेनी प्रोनाउंस डू वी हैव? 7. करेक्ट, वी हैव 7 प्रोनाउंस. यहाँ पे ध्यान दो, अपने पास में 7 प्रोनाउंस हैं. कौन से हैं? आई, ही, शी, इट, यू, वी एंड दे. पुराने जमाने में खाली 3 थे, यहाँ पुराने जमाने में सिर्फ 3 थे, आज के जमाने में 7 है, करके इजी हुआ इंग्लिश. वो क्या थे अपन देखेंगे बाद में. बट अब यहाँ पे उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज है, उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज है. कौन कौन सी कैटेगरी है वो? सिंगुलर कैटेगरी के प्रोनाउंस है, एंड नेक्स्ट प्लूरल कैटेगरी के प्रोनाउंस है. नाउ इफ यू सी सिंगुलर एंड प्लूरल, अभी अपना लेटेस्ट में हॉट टॉपिक खत्म हुआ है, यस नो? Yes, sir. टॉपिक अभी भी अपना हॉट है दिमाग में, यस नो? सिंगुलर प्लूरल अभी खत्म किया कल, करेक्ट? तो भूलना नहीं आपको, आपकी माँ की कसम. इफ यू सी दैट सिंगुलर एंड प्लूरल टाइप के 2 टाइप के प्रोनाउंस है अपने पास में. व्हाट आर दोस? सिंगुलर एंड प्लूरल. तो सिंगुलर प्रोनाउन कौन से है, प्लूरल प्रोनाउन कौन से, देख के लेंगे अभी हम लोग. आई को फिलहाल में छोड़ देते जरा साइड में. नेक्स्ट ही मतलब वो लड़का. तो मतलब कितने लड़के की बात चल रही है? एक. 1. सो इट इज व्हाट? एब्सोल्युटली सिंगल. यस नो? ही सिंगुलर प्रोनाउन है, यस नो? Yes, sir. Yes. गुड वन. ध्यान देना है, ध्यान देना है, कुछ पीना खाना नहीं है. नेक्स्ट शी सिंगुलर के प्लूरल है? Singular. वेरी गुड. शी मतलब एक लड़की को बोलते हैं, इट इज व्हाट? सिंगुलर. गुड वन. नेक्स्ट वन, इट Plural. Singular. अरे रतालू, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है वो. ओ मैडम, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है. क्यों? बिकॉज इट, फॉर एग्जांपल, इट इज अ कप, यस और नो? Yes, sir. Yes. इट इज अ लैपटॉप, यस और नो? Yes, sir. Yes. इट इज अ कर्टन, यस और नो? सो कर्टन कितना है? एक ही है. कप कितना है? एक ही है. लैपटॉप कितना है? एक ही है. सो इट इज ऑल्सो सिंगुलर. ओके, चलो भाई, इतना तो क्लियर हुआ. नेक्स्ट वन, यू सिंगुलर के प्लूरल है? करेक्ट, शी इज राइट. बोथ दोनों भी है, वो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है. फॉर एग्जांपल अब जैसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ मिस सना से. मिस सना, हाउ आर यू? तो मैडम कितनी, एक है कि 4 है? एक. ऑब्वियसली मैडम सिर्फ एक ही है, वो भूतनी नहीं है, वो सिर्फ एक ही है, सिंगल है मैडम, यस नो? एक ही है मैडम. सो शी इज सिंगुलर. और अब मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ. आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. सो यू क्या हुआ? Plural. Plural. रूलर नहीं, प्लूरल. जय, प्लूरल. ओके, Plural. हाँ, वेरी गुड. सो यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है. अभी इसको कौन सी कैटेगरी में डालना चाहिए मैंने? Both. नहीं, ऐसा अपन एड़े चाले नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास रोटी एक है और खाने वाले 2 पंटर लोग हैं, तो अपन आधी आधी करके नहीं दे सकते. ओके,
सो इसको अपन डालेंगे यू को प्लूरल की कैटेगरी में. ऑलवेज रिमेंबर यू हैज बीन कंसिडर्ड ऑलवेज एज अ प्लूरल प्रोनाउन. यू कभी भी सिंगुलर नहीं होता है. अब आपको कॉन्वेंट स्कूल के कुछ ऐसे ढक्कन लोग मिलेंगे, सॉरी टू से दिस. आप लोगों ने कितने लोगों ने डायलॉग सुना है बाहर? हाउ इज यू? सुना है कि नहीं? हाय हाय हाउ इज यू? नॉनसेंस. वी मस्ट से देयर हाउ Are you? correct. How are you? We don't say how is you. If you are saying how is you, wrong. Wrong. We must say there how are you. It is correct. How are you is correct. How is wrong? How is you is absolutely wrong. So you has been considered as plural pronoun. Is that clear to all of you? Yes. Clear? Yes. Next one. Now we singular है क्या plural है? Plural. Absolutely plural है. We का मतलब क्या होता है? हम. तो मैं अकेले को हम बोल सकता हूँ क्या? No, sir. हम मतलब कम से कम दो लोग रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं और रजा, हम, वी आर फ्रेंड्स. तो क्या है ये? हम. ये सुनो, आप Yes, सब sir. लोग और मैं, हम सब लोग कौन है? एक क्लास है. सो वी आर व्हाट? प्लूरल. नेक्स्ट वन. मैं स्लो इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत नाजुक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फास्ट में 15 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ मैं, बट डिटेल में जाके इसके लिए बता रहा हूँ दैट यू शुडंट मिस इवन अ सिंगल पॉइंट. सो प्लीज पे अटेंशन हियर. नेक्स्ट, दे प्लूरल है कि सिंगुलर है? Plural. वेरी गुड. दे इज व्हाट? एब्सोल्युटली प्लूरल. दे मतलब वो लोग. दे मतलब वो लोग. सो दे इज व्हाट? प्लूरल. हाँ, क्लियर. लास्ट बचा Yes, sir. अपना आई. आई सिंगुलर के प्लूरल है? Both. अच्छा बहुत कैसे? मैं कैसे नहीं कैसे मैडम? I. Can I say? नो 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 नो, सना मैडम बीच में नहीं घुसना. सॉरी. थैंक यू. सुप्रिया मैडम. पर singular है ना I. हाँ, वेरी गुड गर्ल. आयशा मैम. I think singular. वेरी गुड. जय. Singular. वेरी गुड. मिस्टर पवार. सर सिंगुलर ही पढ़ाया है अभी तक. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड. मिस सहाना. आई सिंगुलर के प्लूरल है? हेलो मैडम, बिजी है. मिस शाइमा. Singular. वेरी गुड. यस मेरे चंपक, मेरे लाल. मिस्टर शोएब. गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है. ओके. नाउ जनरली आई इज सिंगुलर. जनरली आई इज सिंगुलर. ओ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड. सो आई इज सिंगुलर. ओके. जनरली आई इज सिंगुलर, बट अपने डॉक्यूमेंट में तो कुछ और लिखा हुआ है. मैंने आई यू वी दे प्लूरल लिखा है यहाँ पे. तो आई यू वी दे प्लूरल, उसमें आई भी आ रहा है. ही सिंगुलर था, एक लड़का. शी सिंगुलर है, एक लड़की. इट सिंगुलर है, एक चीज, एक आइडिया, एक बेबी, एक प्लेस. आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू प्लूरल है, अभी बोला मैंने. वी मतलब हम, प्लूरल है. दे मतलब वो लोग, प्लूरल है. आई प्लूरल कैसे है? यस. Exceptional case तो नहीं है सर. पहले ये रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन. गुड बॉय. ओके चलो, आप लोगों के लिए एक ऑफर रखता हूं मैं. ओके आप लोगों ने फी पे नहीं की अभी तक के. ऑफर मेरा है 1000 रुपीज का इनाम रहेगा. प्लीज आंसर मी, हाउ आई इज प्लूरल? सना मैडम को छोड़कर. हाउ आई इज पुराने जमाने में बोलते होंगे ना हम. नहीं 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 नहीं, छोड़ो कल की बातें. कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे अपन नवी कहानी. 2021. हाउ आई इज प्लूरल. 1000 रुपीज रिवॉर्ड. 1000ची पत्ती, 2 500चे गांधीजी. ओके, रिवॉर्ड डबल. 2000 रुपए दूंगा मैं उसको, बंदे को, जो भी आंसर देगा. यस मिस सहाना. It is not a. यस यस जय. Sir, it is whenever we talk about
self. So that time we are using the I, but that time we are using the me and my. I mean, my friend and me. That time we can use I also. So it is maybe both singular No, plural. my friend is singular and I is singular. तो I तो singular ही हुआ ना. आप अपने बारे में बात कर रहे हैं. I am Ansari Idrisi. Singular हूँ मैं. I and Jay are going for a picnic. तो मैं भी जा रहा हूँ, जय भी जा रहा है, तो हम लोग प्लूरल हो गए. तो वहां पर मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ I going for picnic, तो I के अंदर जय भी आ गया. नहीं, मैंने क्या बोला? I and Jay. मतलब I और मैं और जय. तो मैं अलग जा रहा हूँ, जय अलग जा रहा है. हम दो जिस्म दो जान है, एक जान नहीं है. Yes, continue. Okay, reward 3,000 rupees. कल बताते. कल बताते. टॉपिक अभी चल रहा है, अभी बताते. Any answer? No, sir. Okay, चलो. Reward 5,000. जिसने फुल फी पे किया है ना, उसको वापस से रिटर्न मिल जाएगा. उसका 5,000 उसमें से रिटर्न मिलेगा. सर मुझे पता है. वाओ, ब्यूटीफुल. प्लीज आंसर. आप हमारे गुरु हो. यस सर. और जो गुरु बोलता है वही सही है. तो आप बोल रहे हैं आई प्लूरल है, इसके लिए आई प्लूरल है. ये सही था. ये सही था. अमेजिंग. आई एम ए फैन यार. क्या बात है यार. आई लव इट मिस्टर विश्वास. अमेजिंग. क्या आंसर दिया मैंने. Sir, but whenever we use like when in interview itself, so that time we are using the myself name is this and this. That मैंने time. आपको एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक लगा लो. Yes sir. मैंने आप लोगों को शायद जब एक मैंने क्लास स्टार्ट किया रहेगा तो मैंने शायद आप लोगों को बोला रहेगा कि माई सेल्फ बोलना गलत है. क्या मैंने आप लोग को कोई चीज पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया. सेल्फ इंट्रोडक्शन में शायद मैंने आप लोग को बहुत बोला रहेगा कि सेइंग माई सेल्फ इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर आप बोल रहे हैं माई सेल्फ आयशा, माई सेल्फ शाइमा, माई सेल्फ रजा, बिल्कुल गलत है. आपको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए आपको? My. Only first name and the last name. For example, my name is Raza Sheikh और आयशा शेख. सो बोलना चाहिए तो फिर माई बोलना चाहिए. वहां पे माई सेल्फ बोलना बिल्कुल गलत है. क्योंकि माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? आप मुझे बोलिए प्लीज. माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? माई सेल्फ मतलब है मेरा फुल कैरेक्टर, मेरा किरदार, माई कैरेक्टर. अब मेरे किरदार के अंदर, माई कैरेक्टर के अंदर खाली नाम आता है क्या? नहीं, उसके अंदर सब आएगा. आदमी कितना अच्छा है, कितना लुच्चा है, कितना सच्चा है, कितना भामटा है, सब आ जाएगा उसके अंदर. सो माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? सब चीजें रहेंगी. तो माई सेल्फ बोलना गलत है. सेकेंड थिंग, माई सेल्फ भी अगर मैं बोलता हूँ अगर कोई चीज को, फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक माई कॉफी माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा. माई सेल्फ मतलब ही मैं सिर्फ मेरे ही बारे में बात कर रहा हूँ. ये सुनो, आई प्लूरल कैसे? 5,000 रुपए गए पानी में. बाप रे, 5,000 रुपए हारे आप लोग. आज रात का खाना मत खाना. घर पे आके बोलना आज मेरे को कुछ मत बोलो, मैं ऐसे सो रहा हूँ, गम में हूँ मैं 5,000 रुपए हार कर आया हूँ. लेट्स हैव लुक हियर. मैं आपको जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे. मिस सना प्लीज आंसर. यस मैडम, प्लीज आंसर. सुनो रे, आंसर सुनो. हाउ आई इज प्लूरल? 5,000 रुपए दे दो मुझे. 5,000 रुपए दो. मैडम रिश्वत मांग रही है. मैडम आंसर प्लीज. So like one team, like cricket team. Example, MS Dhoni not say we win match. He say I win match. Like group. करेक्ट. यहाँ पे ध्यान दो रे. मैडम ने बोला है, अभी आप लोगों को मैं इलैबोरेट कर रहा हूँ. प्लीज पे अटेंशन. आई विल विन द वर्ल्ड कप. अब फॉर एग्जाम्पल अभी अपने इंडियन टीम का कैप्टन कौन है? विराट कोहली, राइट? आई विल विन द वर्ल्ड कप. अभी मीडिया के साथ में बात करते हुए विराट कोहली ने बड़े बड़े बातें क्या किया वहां पर? आई विल विन द वर्ल्ड कप. सेड कौन? विराट कोहली. उसने वहां पे क्या किया? मीडिया में बोला आई विल विन द वर्ल्ड कप. ध्यान दीजिए, ये हेडिंग छपा कहां पर?
न्यूज़पेपर में। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं हेडिंग दे रहा हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल आई शैल बीट अमेरिका सेड द चाइनीज प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ, सुबह सुबह में हमारा जय जो था, अब्बा ने जय को बोले जय गेट मी न्यूज़पेपर। तो जय ने क्या किया, सुबह सुबह मस्त एकदम ऐसा आंखें भी के अरे आ रहा था ना यार, पेपर न्यूज़पेपर की दुकान पर गए जय, और जय ने वहां पर जाकर बोला यार पेपर दे यार। और जय ने ऐसे आंखें बंदी थी, तो वहां पे जय को ऐसा रेड कलर में लिखा हुआ दिखा, दैट वहां पे लिखा हुआ था एक न्यूज़पेपर में आई शैल बीट अमेरिका। वहां पे जय ने देखा कि एक न्यूज़पेपर की हेडिंग में लिखा हुआ एकदम बड़े में बोल्ड करके रेड में लिखा हुआ है आई शैल बीट अमेरिका। तो जय की नींद ही उड़ गई, ओह बाप रे, सब पेपर छोड़, वो पेपर दे वो पेपर दे वो पेपर दे। ये कौन बंदा है जिसने बोला कि मैं अमेरिका को मारूंगा? ओ माय गॉड, अमेरिका को मारूंगा मतलब किसने बोला ये? सेड द चाइनीज प्रेसिडेंट। चाइना के प्रेसिडेंट ने बोला ये बात। किसने बोला ये? चाइना के प्रेसिडेंट ने। नाउ यहाँ पे उसको क्या बोल रहा है देखो, आई शैल बीट अमेरिका मतलब मैं अमेरिका को मारूंगा। क्या अकेले जाके अमेरिका को मारेगा ये? नो सर, नो। एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहे हैं वहां पर? चाइना। कौन मारेगा? चाइना मारेगा। तो चाइना में कौन जाएगा? औरतें लोग जाएंगी मारने के लिए? कौन जाएगा मारने? पूरी फोर्स। करेक्ट, आर्मी जाएगी। वहां पे आई किसके लिए यूज किया गया है वहां पर? फोर्स के लिए, आर्मी के लिए। आर्मी फोर्स के लिए। और चाइना के अंदर 26 लाख की आर्मी है। तो 26 लाख तो भाई सिंगुलर नहीं होता है, होता है क्या? आई प्लूरल हुआ कि नहीं? यस सर। 5000 गए, 5000 गए। सेम केस, आई विल विन द वर्ल्ड कप। आई विल विन द वर्ल्ड कप, मैं वर्ल्ड कप जीत के लेकर आऊंगा। ये किसने बोला? विराट कोहली ने इंडिया को बोला आई विल विन द वर्ल्ड कप। वहां पे आई कौन था? आई कौन था? अकेले जाके लेके आने गया वो नहीं। किसके बारे में बात कर रहा था वो? आई। करेक्ट, वहां पे आई किसके लिए यूज किया गया? टीम के लिए। और टीम में कितने लोग हैं भाई? 11 प्लेयर्स। 11। यस नो? सो अल्टीमेटली वहां पे 11 क्या हुआ? प्लूरल हुआ कि नहीं? सो आई इज व्हाट? आई 5000 गेले ग सुप्रिया। आओ मिस्टर विश्वास, 5000 गेले। मिस सहाना, 5000 कमवले आम्ही। एग्जैक्टली। एक्चुअली सच बोले तो आप लोगों ने आज 5000 कमाए हैं। कैसे? आप लोगों को इतना बड़ा ज्ञान जो मिला, नॉलेज। करेक्ट। बाय द वे, सो खाली ये वाले ओके, बट ये जो मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल बताया, जनरली आप लोग को जो आंसर पहले जो था वो बिल्कुल सही है, दैट आई इज सिंगुलर, बट ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस आई हैज बीन कंसीडर्ड एज प्लूरल। ओके, दैट इज व्हाट इन एक्सेप्शनल केस, ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाकी टेंसेस में नहीं है, बाकी टेंसेस में गलती नहीं करना। ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस आई इज व्हाट? सिंगल। I is plural, okay? Otherwise, Plural. I is singular. Any doubts? No sir. Any doubts? Good. No, sir. So, No, sir. by the way, I hope you have enjoyed it. But थोड़ा सा गम तो रहेगा कि यार 5000 गए यार आज। So, by the way, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब रूल अपना क्या बोल रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। While making sentences of simple present tense sentence बनाते टाइम पे हम लोग को ध्यान में रखना है he, she, it सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ में जब कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, वी आर गोइंग टू पुट देयर एस और ईएस इन द वर्ब। वर्ब के अंदर, क्रिया के अंदर एस और ईएस लगाना है। एंड आई यू वी दे प्लूरल प्रोनाउंस के साथ में जब सेंटेंस बनाएंगे, वर्ब प्लस नो एस नो ईएस, उसके अंदर एस और ईएस नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बोला हूँ, ही शी इट सिंगुलर वर्ब प्लस एस और ईएस, आई यू वी दे प्लूरल प्रोनाउंस, वर्ब प्लस नो एस नो ईएस। ओके, वर्ब प्लस नो एस नो ईएस। मैं इसको रेड में लिख देता हूँ। ये मैं सिर्फ इतना कलरफुल इसके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से फटाफट समझ में आएगा। नाउ व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस, यस मैम। सर, सेल्फ इंट्रोडक्शन में जैसे हम ऐसे बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट, तो ये भी प्रेजेंट ही हुआ ना? हाँ, प्रेजेंट ही हुआ। प्रेजेंट, हाँ, तो वहाँ पे आई मतलब सिंगुलर के लिए तो यूज करते हैं ना? हाँ, वही तो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना कि कैसा यूज हो रहा है वो। सो जनरली मैंने क्या बोला, आई इज व्हाट? सिंगुलर ओनली, बट ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, खाली खास इसके लिए आई को सिंगुलर प्लस प्लूरल भी बोला गया है इसके अंदर। ओके, क्यों, क्या, कब, कैसे, मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। सो ही शी इट वर्ब प्लस एस और ईएस व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस विद ही शी इट। अब आप लोग ही के साथ में सेंटेंस बना रहे, मैंने सेंटेंस लिया ही के लिए, ही मतलब वो लड़का, प्लस वर्ब,
प्लस वर्ब. वर्ब क्या होता है? क्रिया. ओके, क्रिया मतलब काम. काम. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ब्स मैंने आप लोगों को दिया आपके फाइल के अंदर. सो ये सब वर्ब्स है. वेट अ मिनट. सी ये वर्ब्स है. ओके, बेसिक इरेगुलर वर्ब. बेसिक इरेगुलर वर्ब, ये सब वर्ब्स है. फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग मतलब लेकर आना, ब्रेक तोड़ना, बिल्ड बनाना, बर्स्ट फटना, बाय खरीदना, बाय करना. ओके, अब जैसे कि मैं बनाऊंगा सेंटेंस ब्रेक के ऊपर. ओके, ब्रेक. फॉर एग्जाम्पल ही प्लस वर्ब, मैंने ही के साथ में वर्ब लिया, ब्रेक प्लस ही प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस लगाने का. अब अपने को सिंगुलर प्लूरल आता है कि नहीं? यस. यस. इसके लिए बोला था वो बेसिक सेंटेंस पे ध्यान दो, सिंगुलर प्लूरल प्रैक्टिस करो. ही ब्रेक्स. व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? फॉर करेक्ट रूटीन. डेली रूटीन नहीं, फॉर रूटीन. खाली रूटीन रहेगा. हो सकता है मंथली रूटीन हो, डेली हो, क्विक वीकली हो, बाय मंथली हो. ओके, सो रूटीन. ही ब्रेक्स मतलब क्या होता है? वो तोड़ता है. तोड़ तो मतलब वो तोड़ता है. ही ब्रेक्स क्या तोड़ता है वो? ही ब्रेक्स वॉल्स. फिनिश. सेंटेंस फिनिश हो गया सेंटेंस अपना. तो वॉल्स तोड़तो, वो दीवारें तोड़ता है. ही ब्रेक्स वॉल्स. डन. सेंटेंस फिनिश. ही शी इट सिंगुलर प्रोनाउंस वर्ब प्लस एस और ईएस लगाया मैंने वहां पर. तो ब्रेक के अंदर मैंने वहां पे एस लगाया. दैट्स व्हाट ही ब्रेक का क्या हो जाएगा? ब्रेक्स. ही ब्रेक विल बिकम ब्रेक्स. क्लियर? समझा? सिंपल. मैं एक और सेंटेंस बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए प्लीज. सर जी आपकी आवाज नहीं आई अभी 2 मिनट पहले. ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. सो ही के साथ में मैंने सेंटेंस बनाया. ही सिंगुलर प्रोनाउन है प्लस वर्ब. मैंने वर्ब के लिए वहां पर ब्रेक. ब्रेक मतलब तोड़ना. करेक्ट. उसके साथ में मुझे क्या लगाना है? एस और ईएस. ही ब्रेक का क्या हो जाएगा? ब्रेक्स. ही ब्रेक्स मतलब ही नहीं वो तोड़ता है. तो तोड़तो अपन सिंपल प्रेझेंट टेन्स कब यूज करते हैं? रूटीन के लिए. आया उधर रूटीन. तो तोड़तो म्हणजे डेली तोडत असेल, मंथली कसंही तोडत असेल म्हणजे तो तोड़तो. काय तोड़तो? वॉल्स. खाली वॉल्स मैंने एक वर्ड लगा दिया. ही ब्रेक्स वॉल्स. फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस में ले रहा हूँ. यस मैम. सर बट यस और यस हम सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए यूज करते हैं ना? हाँ, तो इसके लिए तो खाली मैं समझा रहा हूँ ना आपको कि वहां पे प्लूरल बनाने के लिए यूज करते हैं. बट ये वाले रूल के अंदर अपन क्या करेंगे? एस और ईएस लगाएंगे वर्ब को डिफाइन करने के लिए कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है. अपने को वहां पर बताना है ना, ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में सेंटेंस बना रहे, ये प्लूरल प्रोनाउन के साथ में सेंटेंस बना रहे. इसके लिए अपन वहां पर एस और ईएस लगा रहे, बाकी कुछ भी नहीं है. खाली सिंपल रूल है एक वो. अगर हम बोलेंगे एक सिंपल, अगर मैं बोलूंगा आई ब्रेक वॉल्स, करेक्ट, और ही ब्रेक वॉल्स, दोनों भी सेम हो जाएगा ना. आप समझ रहे क्या? एक्चुअली ही जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है एंड यू जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है. अगर मैं बोलूंगा यू ब्रेक वॉल्स, करेक्ट, एंड ही ब्रेक वॉल्स, वो भी उल्टा, मतलब सेम हो जाएगा. तो हमको सेम सेम नहीं रखना है. इसके लिए उसने अलग करने के लिए उसने क्या किया है वहां पर? रूल रखा है वहां पर वैसा. सिंपल. खाली क्या करने के लिए? अलग करने के लिए. अभी अपन क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास में, बॉयज अलग गर्ल्स अलग. क्यों करते हैं उन लोग को? खाली थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए. यस नो? या तो फिर उन लोग को कलर्स देते हैं, ग्रीन कलर बॉयज, रेड कलर बॉयज. सो ऐसे कुछ कलर्स वगैरह देते हैं, मतलब खाली डिफरेंशिएट करने, बाकी कुछ भी नहीं है उसके अंदर. तो खाली सेंटेंसेस अच्छे बनेंगे उसकी वजह से उन लोगों ने सिंगुलर प्लूरल बना कर दिया है. नेक्स्ट वन. अब जैसे कि मैं सेंटेंस बना रहा हूँ शी के ऊपर. सर लेकिन इट इज यूज फॉर रूटीन एक्शन ना, एंड ब्रेकिंग द वॉल इज नॉट अ रूटीन एक्शन. नो, खाली सेंटेंस बना के दे रहा हूँ, इतना टेंशन मतलब प्रैक्टिकली मत जाओ सर. खाली एक सेंटेंस बना रहा हूँ मैं. ओके. सो ओके, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि कोई बंदा है, अभी अपन मैं बोल सकता हूँ जैसे मेरा भांजा है, ओके, मेरी बहन का लड़का है, वो क्या करता है? ग्लासेस तोड़ते रहता है. वो कभी हफ्ते में कभी महीने में ग्लास तोड़ते रहता है. तो मैं बोल सकता हूँ ही ब्रेक्स ग्लासेस. यस नो? तो ये भी एक उसका रूटीन एक्शन हो सकता है, तोड़ते रहता है वो. यस सर. यस. नेक्स्ट. अब फॉर एग्जांपल शी, मैं शी के साथ में सेंटेंस ले रहा हूँ प्लस वर्ब. वर्ब मैंने लिया वहां पर टीच. टीच म्हणजे पढ़ाना. ओके, पढ़ाना. टीच का मतलब पढ़ाना. शी टीच प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस. क्या लगाना चाहिए मैंने? ईएस. रेक्स. ईएस क्यों लगेगा वहां पर? ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेली की ऑनगोइंग प्रोसेस, रूटीन वर्क है. यस, बट ईएस क्यों लगाया मैंने यहाँ पर? हिसिंग साउंड है, करेक्ट.
करेक्ट, ये CH क्या आया, हिसिंग साउंड आया, इसके लिए वहां पर ES लगेगा, समझा? सो शी टीचेस, वो क्या पढ़ाती है? शी टीचेस इंग्लिश, ये रूटीन है उसका, वो मैडम है। सर वो मैडम ये क्यों लगाना, समझा नहीं। बताता हूँ, एक्चुअली आप वो उसमें नहीं थे आप। एक अगर आप देखेंगे पुराने प्रीवियस लेक्चर्स, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स का लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा हिसिंग साउंड से जो वर्ड्स एंड होते हैं हम लोग उसमें लगाते हैं ES। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर है, ये देखो हिसिंग साउंड के वर्ड्स है। वेट अ मिनट, ये PDF लोड भी क्यों नहीं हुआ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरा, थोड़ा स्लो चल रहा है शायद। ओके, दिख रहा है आपको यहाँ पर सर? हिसिंग साउंड से जो भी वर्ड्स एंड होंगे ना उसके अंदर अपन ES लगा के उसको प्लूरल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रश, तो हिसिंग साउंड क्या है? स, श, स, ज, च एंड ओ। फॉर एग्जाम्पल ब्रश एंडिंग विथ श, प्लूरल विल बी ES, brushes. Okay, sir. Next, box ending with s, plural will be boxes. Next, bus ending with s, plural will be buses. Same case, inch Yes, yes, ending with ch, so plural will be inches. Church, churches. Got Watches. Correct. Okay, sir. So she teaches English. Routine है. She teaches English. Okay. Next one. अब मैं सेंटेंस बना रहा हूँ इट के साथ में। सेम इट के साथ में भी क्या आएगा रूल हमारा? इट प्लस वर्ब प्लस एस और ES। फॉर एग्जाम्पल इट, अभी इट किसके लिए यूज करते हैं अपन? एनिमल्स, थिंग्स, बेबीज एंड प्लेसेस। अब मैं यहाँ पे एनिमल के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन है एनिमल? पिजन। पिजन कौन है? इट, बर्ड है। सो फ्लाई, अब फ्लाई का क्या हो जाएगा मिस आयशा, मिस शाइमा? फ्लाइज। करेक्ट, तो फ्लाइज का स्पेलिंग क्या आएगा उधर? IES. IES. Yes or no? The words which are ending with Y plural will be ending with IES. ये सब पढ़ाया था कि नहीं? Yes sir. Yes, आई थी शपथ, भूल गए आप लोग? अरे आपको आपकी माँ की कसम, भूलो बिलो मत। The plural which are the singulars which are ending with Y plural will be ending with IES. Yes or no? Fly का क्या हो जाएगा? Flies होता है कि नहीं? Flies. Yes. ये फ्लाई मक्खी वाला है, वो फ्लाई कौन सा है? उड़ने वाला। ओके, सो इट फ्लाइज, वो उड़ता है। कहाँ भाई? जमीन में क्या? नहीं, इन द स्काई। एनी डाउट्स? सो वर्ब के अंदर मैंने क्या किया? वर्ब क्या था वहां पर? फ्लाई। उसके अंदर क्या लगाना है अपने को? S और ES। यहाँ पे S और ES बोला था उसने, मैंने IES लगाया। ऐसा क्यों? रूल है, पता है ना रूल? सर Y के टाइम पर IES आएगा। करेक्ट, सिंपल रूल है हमारा। समझ में आया? इट फ्लाइज इन द स्काई, वो हवा में उड़ता है। एनी डाउट्स? No, sir. No. नेक्स्ट वन, एक और सेंटेंस ले रहा हूं मैं, एक और सेंटेंस ले रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। इट, अब मैं इट यूज कर रहा हूं बेबी के लिए। अब मुझे बोलना है बेबी रोता है डेली, बेबी डेली रोता है, तो मैं क्या बोलूंगा? इट क्राई। क्राई क्या है? वर्ब है। वर्ब प्लस S और ES, yes or no? सो क्राई का क्या हो जाएगा? क्राइज। Cries. इट क्राइज डेली, वो बहुत रोता है डेली। कौन? बेबी। सो क्राई का हो जाएगा क्राइज। IES क्यों लगाया? क्योंकि हमारा रूल था उधर। तो जिसने बंदे ने बेसिक छोड़ा, आगे की उसकी टिप्पणी बोल। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पछतावा हो रहेगा, अरे यार मैंने थोड़ा पहले सीरियस नहीं लिया था, वेफर खाते बैठा था पीछे लेक्चर के अंदर, आज लटक रहा हूँ उधर, थोड़ा सा ध्यान देना, इसके लिए बोलता हूँ मैं। नेक्स्ट वन, और सेंटेंस बनाता हूँ मैं इट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि आप लोग को मैं बोलता हूँ ये मेरा चार्जर है, ओके, ये मेरा चार्जर है, बहुत अच्छा काम करता है। सो ये क्या है? चार्जर। इट है कि नहीं? थिंग, थिंग है ना? हाँ हाँ, तो बोलो। सो इट, अब मुझे बोलना है ये बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं क्या बोलूंगा? इट वर्क। वर्क क्या है? वर्ब है। वर्ब प्लस वर्क। करेक्ट, वर्क का क्या हो जाएगा? Works. करेक्ट, इट वर्क्स नाइसली। एनी डाउट्स? No, sir. No. तो इट वर्क्स नाइसली, तो मैंने यहाँ पे इट के साथ में सेंटेंस बनाया, वर्ब के अंदर S और ES लगाया, सेंटेंस मेरा तैयार हो गया। एनी डाउट्स? No sir. No, sir. So he, she, it, verb plus S or ES. Now, while making sentences with IU with a plural pronouns, verb plus no S, no ES. Verb के अंदर कुछ लगाने का नहीं, कुछ एड़े चाले करना नहीं verb के अंदर। Now sentences with I plus verb, मैं एक में verb ले लेता हूँ I के साथ में। For example, I sweep. Sweep मतलब झाड़ू लगाना। करेक्ट, झाड़ू लगाना। I sweep my room. सो स्वीप क्या था वहां पे? वर्ब था। वर्ब के अंदर कुछ लगाना है क्या? No. नहीं। कुछ एडवांस चाले नहीं करने का, जस्ट लीव इट एज इट इज।
प्लूरल प्रोनाउंस वर्ब प्लस नो एस नो ईएस, रूल है हमारा वहां पे. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रोनाउन इज देयर सर इधर यू. यस मैम. सर इधर आई तो सिंगुलर के लिए यूज किया ना. नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में, ये वाले टेंस के लिए आई कहाँ पे कंसीडर करेंगे अपन? Plural. प्लूरल. सिंपल. तो उसके ऊपर रूल कौन से अप्लाई करेंगे अपन? प्लूरल वाले. ओके. एक्चुअली हमको मालूम है आई सिंगुलर होता है, बट ये वाले टेंस के लिए खाली फक्त या टेंस साठी. अभी अपन, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, देखो अभी अपन क्या करते हैं. अभी फॉर एग्जांपल बारिश का महीना है, तो मेरे स्कूल के अंदर क्या होता था, मेरे स्कूल में जो विंडो थी ना, ऐसी बड़ी विंडो थी, तो जो लास्ट बेंच वाला था ना, कभी कभी भीग जाता था. तो वो क्या करता था, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था, तो लास्ट बेंच वाला मेरे बेंच पे आकर बैठता था कभी कभी. उसकी वो परमानेंट जगह है क्या? नहीं. परमानेंट No, sir. जगह किसकी है? आपकी. करेक्ट, मेरी है. सेम केस उसके लिए किस दिन के लिए जगह रहेगी? खाली जिस दिन बारिश हो रहा था उसके लिए, उस दिन के लिए जगह रहेगी वो. ये सर नो, बाकी वो उसकी जगह Yes, नहीं yes, रहेगी. sir. सेम वैसे ही है. सिंगुलर जो है, आई जो है वो सिंगुलर है, उसकी परमानेंट जगह सिंगल है, बट खाली प्रेजेंट टेंस के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या जगह है उसकी? प्लूरल. प्लूरल. तो वो उसके ऊपर रूल कौन से अप्लाई करेंगे अपन? प्लूरल वाले. सिर्फ आज के लिए, फक्त आज इथं बस, नंतर बसायचं ना, ऐसा. सो आई स्वीप माय रूम. सो वहां पे आई के ऊपर अपन प्लूरल की रूल अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट वन, यू. यू मतलब आप. करेक्ट, प्लूरल प्रोनाउन है. यस नो. Yes, sir. वर्ब प्लस नो एस नो ईएस. वर्ब के अंदर एस और ईएस कुछ भी लगाना नहीं. फॉर एग्जांपल यू प्लस मैं एक वर्ब ले लेता हूँ, राइट. राइट म्हणजे लिखना. यू राइट. यू राइट व्हाट? यू राइट. वर्ब, वर्ब के अंदर कुछ एस और ईएस लगाएंगे क्या? No, sir. नहीं, No. कुछ नहीं लगाने का. यू राइट लेटर्स. आप लोग लेटर्स लिखते हैं. यू राइट लेटर्स. वर्ब प्लस नो एस नो ईएस. वर्ब प्लस नो एस नो ईएस. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रोनाउन इज देयर वी. वी मतलब हम, प्लूरल है. वर्ब प्लस एस और ईएस नो, बिल्कुल नहीं आएगा. वी. वी मतलब हम. वर्ब मैंने लिया यहाँ पे लर्न. लर्न मतलब नहीं पढ़ना, अपन पढ़ते हैं. वी लर्न इंग्लिश. English. अपन इंग्लिश पढ़ते हैं. यस नो. सो वर्ब इज व्हाट? लर्न. लर्न प्लस नो एस नो ईएस. लर्न प्लस नो एस नो ईएस. एनी डाउट्स? No, sir. Next, they. They is what? Next pronoun is what? They. They plural pronoun है. Verb plus no s no es. For example, they go. Go verb है. Verb plus no s no es. They go. कहाँ जाते हैं वो लोग? They go to school. Done. समझा? समझा? Yes. So I sweep my room. ये मेरा डेली का रूटीन है. You write letters. ये भी आप लोग का रूटीन है. आप मंथली बाय मंथली लिखते हैं. We learn English. डेली पढ़ते हैं. रूटीन है हमारा. They go to school. रूटीन है उन लोग का, डेली जाते हैं. It works nicely. अच्छा काम करता है, रूटीन है. It cries daily. रूटीन है, रोते रहता हो. It flies in the sky. रूटीन है उसका. She teaches English. रूटीन है. He breaks glasses. एक्चुअली रूटीन रहता नहीं, पर उसका रूटीन बना लिया उसने, तोड़ते रहता हो. Any doubts? No, Yes, sir. sir. तो ये था हमारा No, sir. सिंपल प्रेजेंट टेंस. Yes, sir. ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस इज द फादर ऑफ ऑल टेंसेस इन इंग्लिश. एनी डाउट्स? No, sir. Yes, sir. Sir. यस प्लीज आस्क रजा. Sir, when do we use to? When do we use to? To. TO2, right? Yes, sir. ये when do They we go use to to? school. करेक्ट. अपन दो जगह पे यूज होता है वो टू. टू हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए. मैं जा रहा हूँ कहाँ? स्कूल को. मैं स्कूल को जा रहा हूँ, सो दे गो टू स्कूल. वो स्कूल जाते हैं. स्कूल को जाते हैं तो मतलब नहीं दे गो टू स्कूल. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द बैंक. मैं बैंक को जा रहा हूँ. शी इज गोइंग टू द स्टेशन. वो स्टेशन को जा रही है, तो डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं टू. So अगर without to use मतलब बोलेंगे तो चलेगा क्या? They go school. नहीं चलेगा. फिर वो स्कूल नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट फिर Wrong हो जाएगा. जाएगा ना? करेक्ट, स्कूल नहीं जाएगा, फिर बाथरूम को जाएगा. फिर वो दे गो टू स्कूल नहीं होगा, क्योंकि अपन बिना टू के लिए यूज नहीं कर सकते ना. हाँ, टू की जगह पे फिर आपको दूसरा यूज करना पड़ेगा, पर प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, दे गो इन स्कूल. यस और नो? Yes, sir. और दे गो बाय स्कूल. स्कूल के पास से जाते हैं वो लोग, स्कूल के अंदर जाते हैं वो लोग, तो वो स्कूल को जाते हैं मतलब नहीं दे गो टू स्कूल. एनी डाउट्स? No, sir. सेकंड यस मैम. और टू कहाँ पे यूज करते हैं बोले? डायरेक्शन और सेकंड वाला जो टू है वो वर्ब के लिए यूज करते हैं, पर वो ये वाले टेंस में नहीं, आगे वाले टेंस में आएगा वो. फॉर एग्जांपल,
फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो उसको, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। सो यहाँ पे टू किसके लिए यूज हुआ? वर्ब के लिए हुआ। आई वॉन्ट टू टॉक, बात करना चाहता हूं मैं। ट्रांसलेशन नहीं कर सकते अपन टू का, बट सिर्फ वहां पे टू वर्ब्स के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे want to go, वो लोग जाना चाहते हैं, तो वहां पे वर्ब्स के लिए भी यूज करते हैं। ये एक अलग चीज है, बट जनरली टू अपन डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं। एनी डाउट्स? नो नो सर। सर। एनी क्वेश्चंस? सिंपल सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। सो आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, सबके साथ में आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? फॉर रूटीन। very good, for routine. We are going to For use routine. simple, yes, we are going to use simple present tense for routine. तो कैसे For routine के साथ routine. में करेक्ट कैसे बनाना है, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। सो प्लीज डोंट गो। नाउ लेट मी शेयर विथ यू ओल्ड, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स थे, मैं उन लोग का आर्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसा यूज किया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लेटेस्ट वाला, ये मेरे सितंबर का बैच था, उनका मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ। देखो, उन लोगों को मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, 21 सितंबर को स्टार्ट किया था। सो इफ यू सी देयर, तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा कि मैंने इन लोग को क्या बताया है इसके अंदर। सी, सिंपल प्रेजेंट टेंस रूटीन के लिए यूज होता है, डेली रूटीन। मैं इसको कॉपी करके आप लोग के पास में डाल रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग इसको यहाँ से चोर के लिख सकते हैं। क्या करके लिख सकते हैं? चोर के। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड बॉय। आप लोग सब यहाँ से चोरी कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिंपल प्रेजेंट टेंस वी आर गोइंग टू यूज फॉर डेली रूटीन। फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों को कंपनी के अंदर आप लोगों का डेली रूटीन बोलना है, आप लोग कैसे बोलेंगे? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अंसार इदरीसी, आई एम अ टीचर। Today I'm going to share with you my daily routine, or let me speak about my beautiful day, or today I'm going to discuss my daily life. वहाँ पे प्रोवर्ब दे देने का लगना चाहिए कि कोई तो बहुत जबरदस्त इंग्लिश बोल रहा है। Early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. Or the early bird catches the worm. Okay, next one. I usually wake up around 6. यहाँ पे wake up क्या है? Verb है। देखो, मैंने verb के अंदर no s no es, I के साथ में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आई के साथ में वर्ब के अंदर कुछ नहीं लगेगा। देखो, मैं जहां पे वर्ब मैंने लिया हूं, मैंने उसके अंदर कुछ लगाया नहीं हूं, मैंने वर्ब को रेड किया है। देखो, आई वेक अप अराउंड 6, देन आई गो टू द जॉन। व्हाट इज जॉन? करेक्ट, टॉयलेट। हाई लेवल के इंग्लिश में टॉयलेट को बोलते हैं जॉन विद स्मॉल जे। ओके, देन आई गो टू द जॉन, देन आई ब्रश माय टीथ। सो ब्रश इज वर्ब, वर्ब के अंदर नो एस नो ईएस। देन आई हैव अ शावर, मैं शावर लेता हूं, have verb plus no s no es. I make breakfast, then मैं breakfast बनाता हूँ, verb plus no s no es. Then I have breakfast, मैं breakfast खाता हूँ, have verb plus no s no es. Then I prepare myself for classes, prepare verb plus no s no es. Then I get dressed, फिर मैं कपड़े वगैरह पहनता हूँ, then I get ready, verb है, verb plus no s no es. Then I go to my class, then I teach from 7 to 12:30 there. So ये क्या था? रूटीन था। सेम अगर मुझे अभी ये ही के बारे में लिखना है, लड़के के या फिर किसी लड़की के बारे में लिखना है, तो मैं क्या बोलूंगा? He usually wakes up. Correct, wakes up around 6. Next, then he goes to the John. Very good. Then he brushes his teeth. Then he has. Correct, he has a shower. Very good. Then he makes breakfast. Then he has breakfast. He has. Correct, very good. Then he prepares for classes. Then he himself रहेगा ना सर? हाँ, then he prepares himself for classes. Then he gets dressed. Then he gets ready. Good. For then my he, class. Then he goes to class and teaches there. समझा?
समझा? Yes, sir. Yes, So sir. how Yes, sir. easy it is, बहुत ही ज्यादा easy है, बहुत ज्यादा easy है. Any doubts? सर बार No, बार sir. आई यूज करने की वजह और कुछ यूज नहीं कर सकते क्या? ये देन की जगह पर नहीं, आई नहीं, उसकी जगह पे अपन क्या बोलेंगे? हाँ, इतना है कि अगर आपको बार बार यूज नहीं करना है तो आप वहां से निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टिंग में बोलना है क्योंकि अपन अपने बारे में बोल रहे हैं इसके लिए. आई यूजुअली वेक अप अराउंड 6, देन गो टू द जॉन, देन ब्रश माई टीथ, देन हैव अ शावर, देन मेक ब्रेकफास्ट. आई बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है. आई निकाल दो, डायरेक्टली आप वर्ब से यूज स्टार्ट करते हैं. समझ में आ रहा है? पर अभी बच्चे लोग जरा कच्चे नींबू है ना, इसके लिए सिर्फ मैंने वहां पे एकदम डिटेल में लिखा हूँ आई. पापा लोग अभी अपने इधर. एनी डाउट्स? No, sir. No, एनी sir. क्वेश्चंस? किसी का है कुछ No, ऐसे sir. खुजली बिजली ऐसे जलन बिलन No गर्दन jalan सूजन? salan karan इधर मतलब भी कुछ तो नहीं. आई सिंगुलर के लिए भी यूज किया है ना. हाँ मैडम, आपने उसको दिल पे ले लिया बहुत ज्यादा. मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, देखो एक्चुअली आई सिंगुलर ही है, पर खाली आज के लिए, खाली सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आई क्या है? Plural. Plural. बस उसको खाली इतना समझना आहे. फक्त आय सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये जे रूल आपल्याला तिथे यूज करायचे त्यासोबत ते काय यूज करणार आपण? तर प्लुरलचे रूल अप्लाई Plural करणार. क्योंकि देखो सुनने में अगर मैं ऐसे बोलूंगा, अगर मैं सुनने में अगर ऐसे बोलूंगा, सुनने में कितना नॉनसेंस लगेगा वो देखो. आई इज गोइंग टू क्लास बोलते क्या? हाँ No. सर. नहीं No. बोलते. सुनने में भी कितना बड़ा नॉनसेंस लग रहा है. सेकेंड थिंग, आई स्वीप्स क्लास गलत हो जाएगा. अंडरलाइन देगा वो. दिख रहा है मैडम आपको अंडरलाइन दे रहा है वो? क्यों? यस. क्योंकि वो गलत हो गया. हाँ. वो इंग्लिश का रूल ही ऐसा है, ऐसा मैंने नहीं बनाया. इंग्लिश का रूल ही ऐसा है कि अपने को वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आप लोग लिख रहे हैं ना, उसको प्लूरल के रूल अप्लाई करने का, बस सूट करने के लिए. आई सर स्वीप द पहले क्लास. सेंटेंस में आई एम गोइंग टू स्कूल आएगा ना? करेक्ट. आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम पहले गोइंग टू क्लास आना चाहिए. एम आना चाहिए, इज नहीं आना चाहिए. देखो समझा? यस यस यस. यस सर. तो इजी है वो खाली ऐसा है कि वो खाली ये वाले रूल के लिए बस, बाकी और कुछ नहीं. वरना तो इज तो सिंगुलर, सॉरी आई तो सिंगुलर है ही बाकी सब सेंटेंसेस में. एनी क्वेश्चंस टू एनीवन? नो सर. वेरी No. गुड. No, sir. अब यहाँ पे मैंने आप लोग को पूरा एकदम डिटेल में सब पढ़ा दिया है. नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस. अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली सेंटेंसेस बनाएंगे. ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस प्रैक्टिकली ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने सामने बनाओ. कोई गलती विलती रहेगा मैं आपको करेक्ट करके दूंगा. ओके, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू मेक बेस्ट सेंटेंसेस. टेक द फर्स्ट फॉर्म. ये जो मैंने फर्स्ट फॉर्म को लाइन मारा हो ना, ये वाला रो में से वर्ब्स लो, सेंटेंसेस बनाओ. अब आपको इसके मीनिंग्स तो पता होंगे, अगर नहीं पता है तो याद करो, इसके लिए बोला था मैंने. ओके, नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स. आई के साथ में सेंटेंस चाहिए. आई प्लस वर्ब प्लस, नो एस नो ई एस. ओके, हेलो. यस सर. हेलो. अरे सेंटेंस बनाओ. बोले यस सर. मेक सेंटेंसेस. आई फॉर एग्जाम्पल, कुछ मैं आप लोगों को सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ, आप लोग फिर उसके बाद में फेंकना स्टार्ट करो. फॉर एग्जाम्पल, आई बिगिन अ बिजनेस, और आई ब्लो कैंडल्स. रूटीन के साथ में सेंटेंस बनाना है. आई कैच अ बॉल, आई बाय क्लोथ्स एवरी मंथ, आई कम टू क्लास, आई कॉस्ट अ प्रोजेक्ट, आई कट I drive वेजिटेबल्स, bike. आई ड्राइव अ कार. Drive bike. बाइक ड्राइव नहीं होती, राइड होती बाइक. आई ड्राइव अ कार. नेक्स्ट, आई ड्रिंक वाटर, रूटीन है. नेक्स्ट, आई डू माई वर्क, रूटीन है. आई ड्रॉ पेंटिंग्स. नेक्स्ट, आई से द ट्रुथ. ऐसे झूठ बात भी करो आप लोग, ठीक है? मैं बहुत सच बोलता हूँ. आई रिंग बेल्स, आई राइड अ बाइक, आई पे द फी. ऐसे झूठ बात भी करो रे. Send mail. मेक सेंटेंसेस. I send mail. I send mail. Very good. Next. आई बिकम स्टूडेंट. Okay. अभी ये रूटीन में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि अभी ऐसा होता है क्या, मैं डेली स्टूडेंट बन जाता हूँ, रूटीन है वाला. बट सेंटेंस करेक्ट है, ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है. नाउ लेट मी टेल यू, इसके अंदर एक और चीज है, आप लोग को बताऊं क्या? यस सर. ध्यान दीजिए प्लीज, इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए. नाउ व्हेन डू वी यूज इट? इट कब यूज करते हैं? फैक्ट. And एनिमल्स, thing. थिंग्स, बेबीज Place. एंड प्लेसेस. करेक्ट. ध्यान दे रहा है. इट मैंने लिया, उसके साथ में वर्ब. वर्ब क्या था? ड्राइव.
इट प्लस वर्ब, वर्ब के अंदर क्या लगेगा? Yes. करेक्ट, एस और ईएस. सो इट ड्राइव्स अ कार. अब मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनना आप लोग ने. इट के साथ में मैंने लिया वर्ब ड्राइव, ड्राइव के अंदर मैंने लगाया एस और ईएस. इट ड्राइव्स अ कार. ग्रामेटिकली करेक्ट है, यस नो? यस सर. बट लॉजिकली सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया हो. कैसे? इट ड्राइव्स अ कार. व्हेन डू वी यूज इट? फॉर एनिमल्स, थिंग्स, बेबीज एंड Places. प्लेसेस. कैन एनिमल ड्राइव अ कार? No, sir. No. थिंग्स, No. बेबी, No. प्लेस. No. सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है बट लॉजिकली गलत है. करेक्ट. एनी डाउट्स? तो लेकिन my sentence is not correct. नहीं, सेंटेंस आपका मैंने क्या बोला? ग्रामेटिकली करेक्ट है. Once a student is always a student. हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ ना, आई, अभी अपन रूटीन के लिए यूज कर रहे हैं. आई बिकम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट बनतो, ऐसा हो जाएगा ना उसका मतलब. मैं स्टूडेंट बन जाता I हूँ. becomes a student of you. हाँ, It तो means मैं हमेशा आपका स्टूडेंट हूँ. नहीं. बिकम का मतलब क्या होता है? बिकम म्हणजे हेलो, बनना. बनना. करेक्ट, बनना होता है. तो आप मेरे डेली स्टूडेंट बनते थोड़ी हैं, वो तो है ही ना. अच्छा, ठीक. पर्टिकुलरली ओके सर. हाँ, गॉट वहाँ इट पे सर. थैंक यू. आप क्या बोल सकते हैं वहां पर? आई एम अ स्टूडेंट. मैं स्टूडेंट हूँ, बनता नहीं हूँ बल्कि हूँ मैं, ऐसा. Yes sir. Yes. Thank you sir. Good. Okay, let's have interesting. See, keep on asking questions. Why? Because questions will make you learn something greater. Okay? चलो. मिस्टर विश्वास, आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब, फाइल वगैरह सब मिला आपको? ये नहीं मिला है सर. सर आप बहुत ज्यादा शरीफ है सर, आपने मेरे को बोला नहीं. नहीं, मैंने एक्चुअली चेक ही नहीं किया, इसके लिए नहीं बोला हूँ. तो फिर आप बहुत खतरनाक है सर. ओके. आप शरीफ बोले तो शर्म आ गई. Oh my God. मजा है. Okay. Thank you. Make sentences please. Good. Make sentences. I catch a ball. I eat food. Good. I draw a diagram. Good. I cut the nail. I eat an apple. Good. Apple. I brings vegetables. I eat an apple. Huh? I eat an apple. Eat an apple. Eat an apple. Correct. An apple. An apple. अभी याद आया बेसिक सेंटेंसेस क्यों बनाया था? Yes sir. पूरा काम में आने वाला है. वेरी गुड. यस मिस्टर पवार. No doubt sir. No. Sentence. Repeat your sentence. I brings vegetable. Very good. I bring vegetables. I say Miss Aisha, make sentences. I run I daily. accept my mistake. I spread a message. I accept my mistakes. I spread messages. Next. I break my phone. क्या बात है? मैं मेरा फोन तोड़ डालती हूँ. I shake a milk. I shake. Can we say a milk? No sir. Why? Because milk is Uncountable. Uncountable. अगर मैत्रीन Yes sir. समझते है क्या? Oh. बेसिक सेंटेंसेस बहुत काम में आने वाला है, उसको एक और बार रिवाइज करना है आप लोगों ने. नेक्स्ट. I meet you. I meet you. मैं आपको मिलता हूँ. गुड. नेक्स्ट. I make breakfast. I make breakfast. Jay, make sentences. I shut a laptop. Very good. Miss Sana, Miss I don't Shaima, make know. sentences. I sing a Yes. song. I saw a dream. Good. I see a dream. I fail in exam. I fail in exam. वाह मैडम क्या सेंटेंस बना रहे? मैं एग्जाम में फेल होती हूँ. रूटीन है अपना. I show. He welcomes you. He welcomes you. No sir. खाली I के साथ में सेंटेंस बनाओ फिलहाल में. he के ऊपर आने वाले. I welcome you. I welcome you. Next. I met a people. I met. Oh madam. A people uncountable. Correct. People uncountable नहीं है, countable ही है, but फिलहाल में ये कोई नहीं लेगा. Second form नहीं लेना है, third form नहीं लेना है. फक्त first form घ्यायचं, second form, third form नहीं घ्यायचं. Second सर form. meet तो first form में है ना? हाँ, मुझे met सुनाई आया, इसके लिए बोला मैं meet बोल. Okay ma'am. Sorry. I meet. Yes. चलो continue. I break the rule every day. Very good. Very I good choose boy. my clothes. Yes. I sell a bicycle. Very good. I catch the ball. I fall down.
I fall down. I catch the ball. Next. I invite my friends. Sir, I sing break a the song. world record. Is it right? Correct. I break the world record. World record. Correct. It's my routine. मैं तोड़ते रहता हूँ world के records. Next. I sing a song. I sing a song. Very good. Next. I hide my pictures. I Hide my pictures. I hide my pictures. I फोटो beat my छुपाती brother. मैं. Very good. I beat. I मैं मेरे भाई को धोता हूँ पकड़ के. Very good. I shake Yes. bottle. I shake bottles. Yes. I bend a furniture. Correct. Drive my car. Good. I do need the no. Huh? I do need the dough. What do you mean by this? आटा गूंथना सर. Okay. 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 I make that. Miss Sahana makes sentences. Miss Shaima makes sentences. I chooses the players. I choose players. I choose. I blow dry my hair. Good. I put a cup. Good. Miss Aisha makes sentences. I lost I- my mobile. Very good. I ride a bike. I ride a bike. Very good. I play my guitar. I buy a every- new every car. day. I buy a new car. I Very read good. a I story. give a ring. I read. I A give story. a ring. I give a ring. Next, Miss Aisha. I learn I daily. catch the dog. I catch the dog. कुत्ते I धरते choose हो. a I beautiful run flower. away. I play the guitar. I play. The guitar. I run choose a away. beautiful flower. I choose. Good. A Next. beautiful flower. Yes. Next. I deal with I the come to problem. you. I deal. Very good. Next. I run away. I run away. Good. Next. I protect my phone. I protect. I Good. put Next. vegetables in I fridge. say a story. Very good. I say a story. Say I I break tell the a heart. story. I break hearts. हाँ मैं दिल तोड़ता हूँ. Sir, what is the mean by cost? Cost. I cost. COST. कीमत लावणे. I cost a project. I cost a product. कीमत लावणे. Okay. I brush. Yes. I pray daily. I brush a I cake. pray daily. I brush. I deal with customers. I deal with customers. I cut the nails. I cut the nails. I broadcast a film. Very good. I do acting. Very good. I do acting. I cut I the draw a mangoes. picture. I Very build good. a confidence. Very good. आता सुनो आप लोग को आता है. Very nice. Very good people. Any doubts? No, sir. No, sir. Any questions? Sir, No, sir. No, Jalan No, Katan. No, sir. Very good. For today, we are going to stop here. We're going to continue this tomorrow. And the students who are remaining with the fee, please pay the Yes. correct. We'll see you tomorrow on time. Practice.